हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The earlier Vedic politics. There is a most important here. We have a mention above that the chief social unit of the Aryan was known as the Jana. Their chief of unit was the politically leaders called Rajan. The main function of the chief was to protect the Jana and the cattle farm to the enemies. And he was the helper in their task by the tribals is a assemblies called Sabha, Samiti, Vidyatha, Jnana, and is a pair of Parishad. There is a most important day, the Parishad. Out of this Sabha and Samiti is where the most important assembly. All aspects of the life were discussed in the assemblies, and this may include a bar, distribution of their spoil of war, and judicially and religious activity, etc. And thus there is assembly in the way of limited their power of the chief. Interestingly, there is a women were also allowed to the participate in the deliberations of the Sabha and Samiti. There is the most important here. The post of their chief was not a hereditary. There is a tribes generally elected him. Though there is a succession in the one family was now, but that was not based on the rule of the pre-generators, and there is the eldest son of acquired to the position. The Purohita is assisted and advise their chief on the various matter. Another than to the Purohita is where to limited number of other officials is who assist the chief in the day-to-day tribe affair. Senanis and the Kulappa and the Gramanis, etc., are the sum of the functionaries which find a mention in the Rig Veda. The Sena and army was not a permanent fighting groups and consist of the able bodies to the tribesmen who were mobilized at their time of the war. And Taskana and the carpenter and the Ratha Kara, their Karyota maker were to responsible for making a Karyots. There is a no officially mentioned as the collector of taxes. There is a people offered to be chief is what is called Bali, and it was just a voluntary contribution made by their ordinary tribesmen and is a special occasion. All this show that the earlier Vedic politics was the uncomplicated system and the base on the support and active participation of all the tribesmen and situation, however, changed during to the later Vedic phase. There is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है आरंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था, यानी पॉलिटिकल की इस समय क्या व्यवस्था थी, ये किस प्रकार की जाती थी। तो देखा जाए तो आरंभिक वैदिक राज्य व्यवस्था में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। ऊपर हमने उल्लेख किया है कि आर्य की प्रमुख सामाजिक इकाई थी जिसको जन कहते थे, और इस इकाई का प्रमुख राजनीतिक नेता होता था जिसे हम राजन कहते थे, और इस प्रमुख का मुखिया काम किया करता था। जनता और पशुधन की शत्रुओं की रक्षा करना अपने इस काम में उसकी सहायता करती थी। जनजाति संस्थाएं जिन्हें सभा, समिति और विद्याथा गण और परिषद कहते थे, इन सबसे सभा और समिति सबसे महत्वपूर्ण संगठन में से एक माना जाता था, और इस सभाओं के जो है जीवन के सभी पक्षों का विचार विमर्श होता था, और इसमें युद्धों में प्राप्त जो है आय का वितरण, न्यायिक और धार्मिक कर्तव्य इत्यादि कुछ भी शामिल हो सकता था। इस प्रकार ये सभाएं एक तरह से इस राजनीतिक प्रमुख की शक्तियों की नियंत्रित भी करती थी। दिलचस्प बात यह है कि महिलाएं भी इस सभाओं और समिति के विचार विमर्श में भाग ले सकती थी। मुख्य का पद जो था वंशागत उस समय नहीं था, यानी जैसे पहले पुराने समय में होता था कि पिता के बाद जो है ज्येष्ठ पुत्र को ही गद्दी पे बैठाया जाता था, उसको ही राजभार संभाला जाता था। जैसे आपने देखा भी होगा रामायण में कि जो राम को जो है पद देने की सारे ने आग्रह किया था, ठीक है। लेकिन इस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, यानी जो है ज्येष्ठ पुत्र यहाँ नहीं बनता था। उस समय चुनाव के द्वारा जो है बनाने जाने का प्रावधान उस समय थी। कहते अगर देखा जाए तो आमतौर पर उसका चुनाव जो है जनजाति करती थी, यद्यपि उसकी
उत्तराधिकारी उसी प्रमुख के परिवार से होने के संकेत मिलते थे, परंतु यह ज्येष्ठ अधिकारी यानी सबसे बड़े पुत्र का पिता का स्थान ग्रहण करने का जो नियम पर आधारित नहीं था। उस समय अनेक मामलों में पुरोहित जो है मुखिया के परामर्श देता था। पुरोहितों के अतिरिक्त कुछ सीमित संख्याओं में पदाधिकारी कर्मचारी भी होते थे जो मुखिया को दिन प्रतिदिन के जो है जनजातीय मामलों में सहायता भी किया करते थे। सेनानी, कुलाप और ग्रामणीय इत्यादि कुछ कार्मिक थे जिनके नामों का उल्लेख ऋग्वेद में हमें जरूर मिली है। सेना स्थायी योद्धाओं का जो है समूह नहीं था और इसमें योग्य जनजाति व्यक्तियां भी शामिल थे जिन्हें केवल युद्ध के दौरान ही सक्रिय किया जाता था। तब में यानी बढ़ाई और जो है रथकार यानी रथ निर्माता और रथ बनाने की सरकारी जिम्मेदारी निभाते थे। कर संग्रह के लिए किसी भी कर्मचारी का उल्लेख नहीं मिलता है। लोग जो भी भेंट मुखिया को देते थे उसे बलि कहते थे और यह आम जनजाति लोग द्वारा विशेष अवसरों पर दिए जाने वाला स्वैच्छिक योगदान था। यानी बलि जो होता था एक तरह का जो है जनजातियों के द्वारा दिए जाने वाले मुखिया को जो है स्वैच्छिक योगदान था, भेंट थी। इसे यही जो है दृष्टिगोचर होता है कि आरंभिक वैदिक कालीन राज्य व्यवस्था बिल्कुल ही जटिल नहीं थी और सभी जनजाति लोग की सहायता और भागीदारी पर आधारित थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में इस परिस्थिति में परिवर्तन आ गया था जिसका परिचय आगे दिया जा रहा है। The next here is the changing in the later Vedic phase. There is the most important here. The changes in the material as a social life during to the later Vedic period led to be change in the political sphere as well. The nature of the chiefships are changed in the period. The territorial idea gained to around. The people start to the laws. There is a control over to chief and the popular assembly gradually are disappeared. The chiefships and the become a hereditary. Their idea of divines is the nature of the kingship get a mention in the literature of this period. The Brahman help in the chief in this process. The elaborate to the is the coronations or details such as a Vajpaya as a Rajya Soya. Establish the chief's authorities. As the chiefs become a more powerful and authorities of popular assemblies start of warning. The officers were appointed to help the chief in administration and they acquired the function of the popular assembly as a main advisor. A rudimentary army to be emerged as the important element of the political structure during this period. And all this live on the text is called Bali and the Shulk and the Bhaga is offered by the people and the chief of the period belong to be Sastriya, one as there is a legals with there is a Brahmans try to establish of complete control over to people in the name of the Dharma. However, all this element do not be sure that is a Janpada and the territorial state with all it is a attribute are such as the standing army and bureaucracy had emerged in the later Vedic period. But this process has started and soon after the Vedic period in the 6th century BC we notice the rise of the 16 Mahajanpad in the northern India. That is the most important here. यहाँ पर जो हमारे समझ आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट उत्तर वैदिक काल में आए परिवर्तन। देखिए उत्तर वैदिक काल में क्या परिवर्तन आए, कैसा परिवर्तन था उत्तर वैदिक काल में। कहते हैं उत्तर वैदिक काल के दौरान भौतिक और सामाजिक जीवन में आए परिवर्तन का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में आए परिवर्तन पर भी पड़ा। प्रमुख जो नेता से लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लग गया और जिसके परिणाम स्वरूप लोकप्रियता संस्थाएं जो धीरे धीरे समाप्त हो गई। यानी ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रमुख नेताओं के लोगों का नियंत्रण ढीला पड़ने लगा और जिसके परिणाम स्वरूप लोकप्रिय संस्थाएं धीरे धीरे समाप्त सी हो गई। मुखिया का पद जो है वंशगत पिता के बाद पुत्र बन गया था, यानी जो है पिता के बाद पुत्र को दे दिया गया था, लेकिन हमने अभी ऊपर पढ़ा कि ऐसा नहीं था उस समय। इस काल के साहित्य में उल्लेख मिलता है कि लोगों में धारणा थी कि राजा का पद दैव्य होता है और ब्राह्मणों ने जो है मुखिया को इस प्रक्रिया में सहायता किया है। वाजपेयी और राजस्व जैसे जो है राज्याभिषेक के विस्तृत धार्मिक कर्मकांड जो है मुखिया का प्राधिकारी स्थापित करते थे। जैसे जैसे मुखिया की शक्ति बढ़ती गई जनप्रिय सभाओं की जो है प्राधिकार कम होने लग गए। मुखिया को जो है प्रशासनिक सहायता देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी
और उन्हें प्रमुख जो है परामर्शदाताओं के रूप में लोकप्रिय सभा के कार्यों को हथिया लिया गया था। इस काल के दौरान एक आरंभिक सेना की संरचना भी राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व बन गया था और इन सभी की जो है जीविका लोगों द्वारा दी जाने वाली एक प्रकार के कर जैसे बलि शुल्क और भाग पर निर्भर करती थी। इस प्रकार में मुखिया क्षत्रिय वर्ण से संबंध थे और उन्हें ब्राह्मणों के संयोजन से धर्म के नाम पर लोगों पर नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करते रहे। परंतु इन सभी तत्वों से यह जानकारी नहीं मिलती कि जनपद और प्रादेशिक राज्य अपनी सभी विशेषताओं जैसे स्थायी सेना और नौकरशाही की व्यवस्था का जो है उद्भव उत्तर वैदिक काल में हुआ हो। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगला चैप्टर और भी इंपॉर्टेंट था, अगला चैप्टर देखना मत भूलना। इसी तरह लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।